अरे पहले पढ़ो शिला प्रभुपाद Srila न्यू ईयर Prabhupada, New York, 9/3/1966. नाइन्थ मार्च 1960। ये कब का समय है? बिल्कुल आरंभ का समय। प्रभुपाद जी के जितने लेक्चर्स है सबसे लंबे लंबे लेक्चर्स है। बढ़िया। Therefore, the whole Vedic process is parampara system. होल वैदिक प्रोसेस इज परंपरा सिस्टम। प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। Parampara system means that I cannot deviate. I cannot make any interpretation. आई कैनॉट डेविएट, आई कैनॉट मेक एनी इंटरप्रिटेशन। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजविषय। ठीक है, ठीक। Just like there is a बस बस, दिस इज मीनिंग ऑफ परंपरा। यू कैनॉट डेविएट, you cannot interpret, just present what you have heard or received, that is parampara, otherwise it is not parampara। रुक गया रुक गया रुक गया। हाँ। एक सेकेंड एक सेकेंड। ये इतिहास है। हाँ, भगवान ने बताया कैसे कैलकुलेशन है। देखो ये देख लो, ये देख के आपको बिल्कुल क्लियर। अभी किसके कौन सा मनु चल रहा है? वैवस्वत मन्वंतर है। हाँ, इससे पूर्व में कितने मनु आ चुके हैं? 6। और इसके बाद कितने आएंगे? 7। एक ये कंडीशन लिविंग एंटिटी जीवा और ईश्वरा में क्या भेद है? क्या अभेद है और क्या भेद है? दोनों। पढ़ो। Srila Prabhupada, the Mayavadi philosopher says that I am God, but I have forgotten myself that I am God. So how God can forget? Here it is the evidence. How God can forget? If you forget, then you are not God immediately. There is no other argument. God cannot forget. God remembers always. Achyuta. Achyuta means infallible. God cannot. ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब भगवान क्यों आते हैं? हाँ, भगवान ने कहा परित्राणाय साधुना। पढ़िए। हाँ, कमेंट्री बाय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। But your devotees, the Rajrishis and the Brahmarishis, can rectify the destruction of the dharma and increase of adharma. हाँ, तो आपको आने की क्या जरूरत है? जो आपके राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि हैं वो ही इसको संभाल लेंगे। Then why is it necessary that you make an appearance? That is true. But I come and perform feats which are very difficult for others to do. That is expressed in this verse. I appears for delivering prana my dedicated devotees, Aduna, whose hearts are bursting with the longing, suffering due to their devotion, for destroying the evil-minded persons like Ravan, Kamsa, and Keshi, who give suffering to my devotees, and who cannot be killed except by me, and for establishing in a firm way the supreme dharma of meditating on me, worshipping, serving me, and singing about me, which cannot be instituted by anyone but me. संस्थापनार्थाय भगवान क्या करते हैं? श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम का संस्थापन करने के लिए ही भगवान बार बार अवतरित होते हैं। और श्रवणम कीर्तनम कौन करेंगे? उनके भक्त, शुद्ध भक्त। ओके, दूसरे को दे दीजिए, पढ़िए। तत्व जिज्ञासा, the human life is only meant for तत्व जिज्ञासा, to understand the absolute truth. That requires Brahmanical culture, not the dull brain of Shudras and Chandalas. They cannot understand, therefore there must be an institution to educate a Brahman, to educate Kshatriya. That is required. Chaturvarna Maya Shishya. If you don't do it, if you simply produce Shudras, bold,
manufacturers, technicians, हाँ, शूद्रा कौन है? झाड़ू लगाने वाला नहीं। शूद्रा कौन है? टेकी। जितने टेकी है वो सब क्या है? शूद्र है। प्रभुपाद जी ने कब बोला ये? 1975 में। उस समय कोई टेकी था? कोई टेकी नहीं था। यूएसए में भी कोई टेकी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे आने वाले समय में बहुत सारे टेकी फैकी बनेंगे। तो उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। पढ़ो। then how you can be happy? Shudras. That is the business of Shudras. This is not business of Brahman. You चलो keep Shudra. नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, You keep Shudra. अरे ठीक है, हो गया। ये सेक्शन हमने देखा अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। अभी हमने पूरा किया जितने भी यज्ञ हैं। ये देखो, कृष्णा एक्सप्लेन्स हाउ टू परफॉर्म अकर्म, डिफरेंस बिटवीन कर्म, अकर्म एंड विकर्म। व्हाट इज कर्म? Working with their attachments according to Shastras. Vikarma is forbidden action or sinful action. Vikarma means पापमय कार्य, और अकर्मा है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको समझने की जरूरत क्या है? If one is serious about liberation, one need to understand distinction. It's difficult subject matter. Speculation won't help. Learn from authorities. महाजना ये न गता संबंध फर्दर डिस्क्राइब किया है। सीइंग इन एक्शन इन एंड इनएक्शन इन एक्शन। ये सैक्रिफाइसेस का, ठीक है। समरी में जितने अभी हमने सैक्रिफाइसेस देखे, इतने सारी वैरायटी ऑफ सैक्रिफाइसेस थे। कितने सैक्रिफाइसेस किए हमने? किसने काउंट किया? कितने सैक्रिफाइसेस थे? बोलिए। नहीं, वो तो पहले ही वर्ष में था ना। उसके बाद तो हमने 24 से शुरू किया था और 33 तक किया है। कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए? 10। बस 10 ही थे। अब स्पेकुलेशन मत करो ना, आपने गिने। तो वाई वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइसेस, क्यों बताया? प्रभुपाद जी ने क्या लिखा था? इतनी सारी वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइसेस, क्या कारण है? हाँ बोली ना, ठीक से नहीं पढ़ा आपने, सुना ही नहीं। बोलो। हाँ, देहात्म बुद्धि में, हाँ, मन में, बुद्धि में, और जिनका इंद्रियों के विषय में जिनका जो स्तर है उसके अनुसार भगवान ने इतने सारे बताए, अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ वर्ण आश्रम एंड देयर रियलाइजेशन। और उसका लक्ष्य क्या है? जितने भी सैक्रिफाइस है, फर्स्ट क्या है? सेंस कंट्रोल, दूसरा दिव्य ज्ञान, और तीसरा क्या है? टॉप मोस्ट क्या है? डिवोशनल सर्विस। ये अष्टांग योग की विधि थी। यहाँ प्राणापान, वेरियस सिद्धीज। वाई वेराइटीज ऑफ सैक्रिफाइस? टू सूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ये हो गया। भगवान ने 32 और 33 में बताया कि ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस विच इज बेटर? वन विद नॉलेज। सैक्रिफाइस, वन हु परफॉर्म सैक्रिफाइस इन नॉलेज। उसका मतलब क्या हो गया? हु इज वर्किंग इन सैक्रिफाइस विद नॉलेज मीन्स वाई इज ही बेटर? वो श्रेष्ठ क्यों है? हाँ, वो कृष्ण भावना भावित है। उसको पता है कि यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है, इसलिए ज्ञान में होना बहुत डिफरेंट है, ज़रूरी है। नहीं तो क्या करेगा वो? कर्म कांड ही करेगा। ठीक है, अब भगवान इसकी सारी निष्कर्ष देंगे। हाँ, टॉप मोस्ट
यज्ञ 34th वर्ष। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिना। तो फिर क्या कह रहे हैं भगवान कि तत्विधि, कौन सी विधि है? हाँ, जितनी भी विधियों में बना है उन सब विधियों में जो श्रेष्ठ विधि है वो क्या है? परिपातेन। परिपात का मतलब क्या है? सम्यक रूपेण हाँ परिपात, की शरण ग्रहण करना। हाँ। और परिप्रश्नेन, और उनसे क्या करना? हाँ, जिज्ञासा करना। कौन सी जिज्ञासा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे आके ये नहीं पूछना है मुझे जॉब कब मिलेगी, हाँ, मुझे कार कब मिलेगी, मेरी शादी होगी नहीं होगी ये सब है। कौन सी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा या तत्व जिज्ञासा। और सेवया, तो फिर क्या होगा? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। कैसे? अपने उपदेश के द्वारा। क्यों क्यों क्या है वो? ज्ञानीनास तत्वदर्शिना, उन्हें ज्ञान का साक्षात्कार है। तो सब लोग क्या ढूंढ रहे थे यज्ञ में? क्या ढूंढ रहे थे सब? यज्ञ क्यों कर रहे थे? ज्ञान के लिए। और ज्ञान प्राप्त होगा कहाँ से? हाँ, तत्वज्ञानी से, हाँ, गुरु से। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि ये सारी सैक्रिफाइसेस करके भी कोई क्या नहीं बन सकता। क्या लिखा था? क्या स्टेटमेंट था? पढ़ो, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा था ना, जब सारे यज्ञ की संस्तुति हो गई। हाँ, कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते बोला था मैंने। क्या स्टेटमेंट था वो? अरे अभी तो पढ़ा था, बोलो, पढ़िए पढ़िए। उन्होंने उनको पीछे पढ़ने दीजिए, प्रभु माइक भेज दीजिए। Krishna consciousness cannot be हाँ, वर्ष नंबर बता दीजिए, वर्ष नंबर बता दीजिए। पैरा Verse number 28, last third. कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर इज डिफरेंट फ्रॉम दीज। पहले ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। Krishna consciousness, however, is different from this because it is direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned type of sacrifice. तो फिर भगवान ने दी क्यों? क्योंकि कई ऐसे मूर्ख हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है उसको नहीं लेंगे। आगे बढ़िए। But can be attained only by the mercy of the Lord and His bona fide devotee. हाँ, तो वो बोनाफाइड डिवोटी कौन है अभी बता रहे हैं। Therefore कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रांसेंडेंटल। वन इज ट्रांसेंडेंटल पर्सन। हु इज ही? वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस, एंड वन बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। एक बात बहुत अच्छा बता देते हैं। जैसे आपने देखा है कि गोल्ड बॉक्स है, तो गोल्ड का है, और एक गोल्ड प्लेटेड बॉक्स है, उसको भी आप क्या बोलोगे? गोल्ड का है। गोल्ड प्लेटेड और गोल्ड में फर्क है या नहीं है? लेकिन वो क्या ले लिया है? वो उसी की प्रॉपर्टी ले लिया। जैसे प्रभुपाद जी एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, फायर का और आयरन का। तो जो ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है उनके कनेक्शन में आप हो तो आप भी क्या बन जाओगे? ट्रांसेंडेंटल। पूरा लक्ष्य क्या था? अभी हमने पढ़ा 31 में कि सनातन यान्ति ब्रह्म सनातन। बाकी से नहीं बन पाएंगे, बाकी सब जितना है उससे कुछ नहीं होगा आपको। तो उसके लिए जो संस्तुति कर रहे हैं भगवान कि वो क्या है? तद्विधि परिपातेन। ये डायरेक्ट मेथड है। वो बाकी जितने सारे मेथड थे वो सब क्या थे? इनडायरेक्ट मेथड है। योगा लैडर है ना, हाँ, एक योगा लैडर है और दूसरा क्या है?
एलिवेटर, ये एलिवेटर है। वो सब क्या है? स्टेयर केस है, सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते जाओ, कभी तो कभी पहुँचोगे। प्रयास करते रहो। अब पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हाँ हो गया, वो तो पढ़ लिया। दे दीजिए अनुवाद, पढ़ो भाई, पढ़ो, थोड़ा सा टाइम बचा है, अभी बहुत सारे श्लोक हैं, एक से एक अमृत है सब श्लोकों में। निसंदेह आत्म साक्षात्कार। क्यों भाई, अभी कुछ प्रसाद मिला है ना, तो आवाज़ कहाँ मर गई? सो गई है क्या? निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान को उपदेश। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? पहले यह तो लिखो ना, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ। पहले अनुवाद तो पढ़ो। अनुवाद कहाँ पढ़ा है? सो रहे हैं बिल्कुल, छोड़ दो माइक, छोड़ो, आप यहाँ हो ही नहीं, दे दो माइक, पढ़ो। ये स्थिति है, बताइए, कुछ कुछ कहीं ध्यान है ही नहीं, हमेशा ध्यान क्या है? भटकता रहता है। पढ़ो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। तो जिसके पास हाँ ये ज्ञान है वो ही दे सकते हैं। प्रभुपाद जी सबसे पहले ही लाइन क्या लिखते हैं? पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। एक मिनट रुकिए, अभी प्रभुपाद जी सीधे क्या लिख रहे हैं? आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। क्यों कठिन है? अभी तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा भगवान ने संस्तुति की है, आत्म साक्षात्कार के लिए इतने सारे यज्ञ बता दिए। हाँ, क्यों आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है? विचार करिए। अरे क्या लग रहा है? आज कितने जैसे जीव है जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया? हाथ उठाइए। हाँ, एक दो हाथ नहीं उठेंगे? तो आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। बोलिए प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं ऐसा? कि द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। अच्छा, और बाकी लोगों को प्रयास करने दो। आप बोलो भाई, आप पीछे बैठो, ये आपके पीछे। हाँ, क्या समस्या है? दे दो उनको माइक, दे दो। प्रभुपाद जी इतना कठिन क्यों लिख रहे हैं? अनडाउटेडली डिफिकल्ट, मतलब संशय से रहित होकर के ये क्या है? बड़ा ही जटिल और कठिन मार्ग है। क्या कठिनता है भाई? आसान है क्या? हाँ, कठिन है। क्या कठिन है? जब आसान है नहीं तो आप बताओ ना फिर कठिन क्या है? क्यों कठिन है? चुप रहो ना। एक बार आपने हाथ उठाया, मैंने देख लिया, आंसर आपको नहीं पता है, वो भी मैं बताता हूँ, आप ही आएगा तो एक्सपोज हो जाओगे। बोलो। तो आपने कहा कि सरल नहीं है, तो कठिन क्या है? ये स्थिति है। अपने ही तर्क को क्या कर रहे हैं? निरस्त कर रहे हैं। या तो सरल होगा, सरल है या नहीं है? प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इजी, तस्याहम सुलभा पार्थ। सुलभा क्या होता है? अनडाउटेडली डिफिकल्ट। प्रभु टाइम मत वेस्ट करो, बोलो क्या है? बोलना पड़ेगा। सुबह सुबह से कुछ नहीं बोले हो, क्या बोला था? अनडाउटेडली डिफिकल्ट क्या है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सेल्फ रियलाइजेशन डिफिकल्ट नहीं है। क्या डिफिकल्टी है बताइए? अरे बताओ ना, आपके व्यवहारिक लेवल पे क्या डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी है या नहीं है? है तो बोलो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। क्या है? हमारे पास बहुत सारे अनर्थ हैं, हमारे हृदय में अनर्थ है। आपके पीछे दे दो, नहीं आपके पीछे। हाँ हाँ भोग वृत्ति का त्याग। हाँ, बहुत अच्छा। आप इसके एक स्टेप आगे चले गए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए लगा हम बिंदु पे आ जाएं अगर तो। भोग वृत्ति का त्याग करना बड़ा मुश्किल है। दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से भोगने की जो भावना है
वो नहीं परिवर्तित होती। ये समस्या है। ठीक है, बहुत अच्छा। और विचार करिए, और गहराई ठीक है। देखो पहले क्यों घबरा रहे थे, माइक आ गया तो। हाँ वो तो ठीक है, वो भोग वृत्ति का आ गया तो इंडिपेंडेंट नेचर हो ही गया। और सोचिए, और थोड़ा गहराई से सोचिए। हाँ इनको दे दीजिए, ये आगे जो यहाँ बैठे। क्या नाम है प्रभु आपका? जोर से बोलिए ना। आशीष बोलिए, क्या क्या समस्या है? हाँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है? शरणागति नहीं होती। उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? अब तो बड़ा सरल हो गया। नहीं, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो। आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा क्या है हमारा? अहंकार। अहंकार शरणागति नहीं करने देता। तो प्रभुपाद जी कितने प्रैक्टिकल हैं, इसलिए लिख रहे हैं द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। ये सबसे इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कुछ लेवल ऑफ सरेंडर करना पड़ेगा। तो प्रोसेस ही पूरा क्या है? सरेंडर का है। द लॉर्ड देयरफॉर एडवाइजेस अस to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. पढ़ो, हिंदी से पढ़ो। हिंदी है अंग्रेजी है? पढ़ो। अरे जहाँ तक पढ़ चुका उसके आगे इतना टाइम कहाँ है? अब ये ध्यान तो देना चाहिए ना। तो भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा। हमने ऐसे भी श्रोता और वक्ता देखे, वो उस एग्जैक्ट वर्ड पकड़ते हैं और एग्जैक्ट वर्ड ही बताते हैं, इधर उधर की बात नहीं होती, तब रस का आस्वादन होता है। पढ़िए। उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से परमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई परमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। गुरु परंपरा का ही शिष्य। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज क्या? अरे क्या? He must be a bona fide disciple. This is the foremost qualification of a spiritual master. He must be a bona fide disciple. Without being a bona fide disciple, no one can become a spiritual master. ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा अपने शिष्यों से कि गुरु की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? तो किसी ने बोला कि उसको भगवान के में प्रेम है, भगवान से आसक्ति है। तो ठीक है, फिर उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान है और 64 माला पढ़ता है तो रोज। कहा नो, फोरमोस्ट क्वालिफिकेशन इज ही मस्ट बी अ बोना फाइड डिसाइपल। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नो वन कैन बी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन प्रोसेस एज इज द फैशन ऑफ फूलिश प्रिटेंडर्स। और फिर एक और बहुत विशेष बात प्रभुपाद लिखते हैं, पूरा ही पढ़ने लायक है। बढ़िया तो कौन पढ़ेगा? इंग्लिश में पढ़ूँ मैं? मुझे पढ़ने दो इंग्लिश में। बहुत ही विशेष तात्पर्य है। इस तात्पर्य को मेरे टीचर ने कहा कि इसको 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, जब तक छप नहीं जाए बार बार पढ़ो। 2 श्लोक उन्होंने कहा कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, 2.7 और 4.34। ये 2 श्लोक अगर आप समझ गए तो इस पूरे जगत में आपके लिए कभी कोई समस्या नहीं होगी। The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. Why? Because conditioned soul does not want to surrender. जो बद्ध जीव है वो शरणागत नहीं होना चाहता। The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. हिंदी वाले हिंदी पढ़ते रहे, बंगला वाले बंगला पढ़ते रहे, सब स्पष्ट है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है।
पढ़िए, ध्यान लगाइए, चित्त लगाइए। पूरा प्रयास यही है। भक्ति शास्त्री के द्वारा आपको क्या आना चाहिए? एक उत्साह आना चाहिए, उमंग आनी चाहिए, आपके अंदर एक भावना आनी चाहिए कि आप शास्त्र पढ़ेंगे। No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. इसलिए क्या नहीं कर सकता? वो चेंज नहीं कर सकता, फिर वो परंपरा में नहीं है। और जिनको भी वो कनेक्ट करता है वो भी सब परंपरा में नहीं है। No one can be spiritually realized by manufacturing his own process. प्रभुपाद जी ने दोबारा लिखा उसी बात को। हाँ, तो अपना नया कुछ मत बनाना, ना प्रयास करना। एक बार कुछ साल पहले की बात है, जब कोविड था, गुरु महाराज यहाँ पे क्लास देते थे, तो एक भक्त ने पूछा कि इतने सालों से इतना प्रयास कर रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग भक्त बनते हैं, कॉलेज में जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तो आप बताइए कुछ नया क्या करें जिससे स्टूडेंट भक्त बन जाए। प्रभुपाद जी ने कहा नया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है वही करिए, जितने भी बनते हैं उसमें संतुष्ट रहिए, नया प्रयास नहीं करना है। आविष्कार करने का प्रयास मत करना है, वो विष हो जाएगा, अवश्य वो क्या रह जाएगा? विष, क्योंकि उसमें क्या नहीं होगी? पोटेंसी नहीं है, पोटेंसी खत्म है। इसलिए बता रहे प्रभुपाद जी कि नो वन कैन बी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन प्रोसेस एज इज द फैशन ऑफ फुलिश प्रिटेंडर्स। जितनी संस्थाएं नई नई खुलती हैं या जो इस्कॉन छोड़ के जाते हैं, वो सबको इसी कैटेगरी के, वो सब क्या है? हाँ, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बना रहे हैं, वो सब क्या है? प्रिटेंडर्स हैं। The Bhagavatam 6:3-19 says, "Dharmam tu sakshat bhagavad pranitam." The path of religion is directly initiated by the Lord. Therefore, mental speculation को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, मानसिक चिंतन, या उसके साथ शुष्क तर्क cannot help one lead to the right path. बहुत एक बॉम्ब गिरा रहे हैं प्रभुपाद जी, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। Nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. इसको जरूर पकड़ लीजिए और इस प्रयास में मत लगिएगा, क्योंकि इस प्रयास में केवल क्या होंगे? आप भ्रमित हो जाएंगे, भक्ति छूट जाएगी और मानते नहीं है। जो बुक दी जाती है वो नहीं पढ़ते, कुछ और ही पढ़ते हैं। तो यहाँ साफ लिख रहे हैं, नॉर बाई इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक ऑफ नॉलेज कैन वन प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, वन हैज़ टू अप्रोच। एक बार व्यास पूजा महोत्सव हो रहा था, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज गुरु महाराज का गुणगान कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कई वर्ष पूर्व वृंदावन में जब गुरु महाराज आए थे, महाराज भी वैष्णव महाराज वृंदावन में रहते थे, मुझे पता है वो कहाँ रहते थे, वो ऊपर रहते थे। ऊपर जो बलराम हॉल है उसमें पहले 2 रूम थे, उसमें भक्ति रसामृत महाराज रहते थे और बगल में वैष्णव महाराज रहते थे। मैं उस समय जाता था, जब महाराज के पास वो कई गोस्वामियों के ग्रंथ लेके गए, बोले देखिए कितनी सुंदर टीका है, इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण है। वैष्णव महाराज बता रहे थे गुरु महाराज को, महाराज 2 मिनट तक सुनते रहे। जब उन्होंने पुस्तक दी महाराज को, महाराज ने ऐसे पुस्तक बंद कर दी और रख दी और बोला इस जन्म में मेरे लिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें काफ़ी है। रिकॉर्डेड है, पूछ लेना वैष्णव स्वामी महाराज से। लेकिन हम समझते हैं हम उनसे भी ज़्यादा आगे एडवांस हैं। अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर गंतव्य कुछ और हो जाएगा। इसलिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? लिख रहे हैं, नॉर बाई इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स ऑफ नॉलेज वन कैन मेक एनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। लेकिन उसके बाद भी जो बद्ध जीव है ना उसकी एक विशेषता है, वो क्या है? कि वो नहीं मानेगा। अभी हमने 70 करा दिया आपको। One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge.
Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. यही तकलीफ है. किसकी तकलीफ है? फॉल्स प्रेस्टीज. हिंदी में क्या लिखा है? मिथ्या अभिमान, अहंकार रहित. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Satisfaction. मैं आपको एक सत्य कथा बताता हूँ. ये 1977 फरवरी मार्च की वाकया है. मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी थे, काफ़ी अस्वस्थ थे. तो प्रभुपाद जी को देखने के लिए कलकत्ता से एक वैद्यराज आए थे. वो साधारण वैद्य नहीं थे, वो बड़े लर्नेड थे और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे राज्यसभा से, और काफ़ी वृद्ध थे, लगभग 85 या 90 साल के. प्रभुपाद जी से भी वृद्ध थे. तो जब प्रभुपाद जी को देखने के लिए उनको भक्ति चारू महाराज ने बुलवाया था. तो वो आए, मिले, देखा, बातचीत हुई. तो फिर बंगाली थे वो भी, तो प्रभुपाद जी के साथ उनकी वार्ता होने लगी. तो 11th कैंटो से कोई श्लोक पर चर्चा होने लगी. तो प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू महाराज को कहा कि जाओ तुम 11th कैंटो ले आओ. अब बोल तो दिया, 11th कैंटो लाए कहाँ से, आया ही नहीं है. तो वो एक अन्य टीकाकार की जो प्रभुपाद जी अपने ट्रांसलेशन में यूज़ करते थे, उनकी कमेंट्री लिया. और प्रभुपाद जी ने बोला ये वाला श्लोक खोलो और पढ़ो. तो ज़्यादातर जो बाकी टीकाकार की कमेंट्री है किस में है? संस्कृत में. और वो पढ़ने लगे. तो जब वो चले गए, जो वैद्य आए थे, तो प्रभुपाद जी ने बुला के बोला भाई तो संस्कृत है, तुमको तो मैंने पढ़ने के लिए मना किया था. उससे पूर्व में एक बार भक्ति चारू महाराज गए गुरु प्रभुपाद जी के पास और बोले कि मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ. प्रभुपाद जी ने बोला क्यों? बता कि मैं शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन कर सकूँ, उनकी व्याख्या कर सकूँ. प्रभुपाद जी का इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको पंडित नहीं बनना है, भक्त बनना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. डांट के भगा दिया. और आप प्रभुपाद जी ने बोला इधर आइए. बोले आपको संस्कृत पढ़नी किसने सिखा दी? बोले मैंने कोई प्रयास नहीं किया. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. सैटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. मैंने कल आपको बताया था इज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज का बताया था. उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि मैं आपकी पुस्तकें पढ़ना चाहता हूँ. तो प्रभुपाद जी पढ़ो, क्या समस्या है? बोला वो इंग्लिश में है और मुझे इंग्लिश आती नहीं, मेरे को तो खाली जर्मन आती है. तो बोले बड़ा सरल है, इंग्लिश सीख लो और मेरी पुस्तकें जर्मन में ट्रांसलेट कर दो. लेकिन उन्होंने उसको किया. ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य, उन्होंने ये कार्य किया. प्रभुपाद जी के सारे शिष्य इतने सक्सेसफुल क्यों हो सके? क्योंकि वो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी प्रयास कर लेते. मैंने एक प्रभुपाद जी के शिष्य से सुना, मैं आपको गुरु कृपा प्रभु के बारे में बता रहा था ना, मुझे एक बार सौभाग्य मिला था गुरु कृपा प्रभु जी से बहुत देर तक मेरा वार्तालाप हुआ था. और क्योंकि अमेरिकन हैं और आर्मी में रहे हैं, वो एक अलग ही उनका स्वभाव है. तो वो मुझसे कह रहे थे कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं था कि हम पैसे ला के प्रभुपाद जी को दें और प्रभुपाद जी टॉयलेट सीट में डाल के फ्लश कर दें. इतनी शरणागति. प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं ना, कुआं है कूदो, पहले कूद जाएंगे, उसके बाद विचार करेंगे. इतना सबमिशन. हम तो कई बार विस्मित हो जाते हैं कि इतना सरेंडर कैसे पॉसिबल है. कंडीशन सोल है ही नहीं. कंडीशन सोल के लिए बहुत मुश्किल. तो सेटिस्फैक्शन. अब हमारे गुरु महाराज के इतनी ग्लोरी सारी तरफ फैल रही है. क्यों? क्योंकि पूरे जीवन भर गुरु महाराज ने केवल एग्जैक्टली वही फॉलो किया है जो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा है. उसके अलावा कुछ किया ही नहीं. उनके जीवन में कुछ और था ही नहीं. मैं आपको श्रील जयप्रताप स्वामी महाराज का एक कन्वर्सेशन बतलाता हूँ. ये वृंदावन में है 1977 में. तो प्रभुपाद जी ने ना एक MVT ट्रस्ट बनाया है, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट. जानते हैं जो MVT है उसका? तो उसका उद्देश्य असली क्या था
कि जो मायापुर, ये क्या हो रहा है? हरि बोल, ये क्या कर रहे हो? ये अभी समय है क्या ये सब करने का? बस सुनने में रुचि नहीं है। परिपाते न परिप्रश्न न सेव्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा सरेंडर है नहीं, जिनका है उनका तो सुने। तो मायापुर धाम के आसपास के जितने भी जो क्षेत्र है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने लीला की है, जहाँ उनके परिकर्ष थे, तो वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे नाम मुझे याद नहीं आ रहा, श्री जगदीश पंडित के जगन्नाथ डेटीज हैं, अभी नाम याद आ जाएगा, ए से नाम है कुछ। हाँ, जगदीश पंडित का नाम सुना है? नहीं सुना है? वो इतने मतलब विशेष भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले उनको भेजा था जगन्नाथपुरी एडवांस पार्टी, उनके जाने से पहले। क्या करने के लिए? नाम संकीर्तन करने के लिए। और जब चैतन्य महाप्रभु आ गए तो बोले वापस जाओ अग्रदीप में। तो उनका जगन्नाथ जी से इतना प्रेम हो गया, बोले इनके बिना कैसे जाऊं? तो जगन्नाथ जी बोले नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। बोले लेके कैसे जाऊंगा इतने भारी भरकम? बोले चिंता मत करो, मैं एक रूई की तरह हो जाऊंगा। तो उनको अपनी लाठी में बैठा के जगन्नाथ जी को लेके आए। तो वो स्थान बहुत बुरी अवस्था में था, कोई देखभाल नहीं कर रहा था। तो जयप्रदा स्वामी महाराज बता रहे थे प्रभुपाद जी को कि वो स्थान हमें मिल सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा क्या निर्णय है, हमें क्या करना चाहिए? वो स्थान ले लेना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बताया बड़ी समस्या है, वहाँ सेवा करने के लिए मुझे अपने विदेशी भक्तों को बुलाना पड़ेगा। उस समय भारतीय भक्त तो बहुत थे ही नहीं, अमेरिकन को वीज़ा नहीं मिलता, समस्या है, बहुत सारी बहुत चर्चा है, बहुत लंबी चर्चा है। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें आखिरी में पूछा था अच्छा आप बताओ क्या करना है, तुम बताओ क्या करना है। तो जयप्रदा स्वामी महाराज की ह्यूमिलिटी, वो उसी समय दंडवत करते हैं और बोलते हैं मैं कौन हूँ आपको बताने वाला, आप पूरे जगत के आचार्य हैं। हाँ, मैं आपको सलाह दूँ ये मेरी दृष्टता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। जब मैंने उसको पढ़ा, दिस इज कॉल्ड परिपातेन सेवया। तो उनके हार्ट में अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए क्या रेस्पेक्ट है। ये हमसे अच्छा ठीक है, आज पहली बार गुरुदेव ने मुझे मौका दिया है, उन्होंने एटलीस्ट मुझे अब कहा अब तुम बताओ क्या करना है, अब मैं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। संस्था के लिए ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ नहीं। बोले आपने अगर आज्ञा दी है तो मैं ये निवेदन करूंगा आपसे। दिस इज डीप रेस्पेक्ट फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर। एक्चुअली कमेंट्री है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, मैं दिखाता हूँ आपको। क्यों नॉलेज ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, उसके लिए कंडीशन है। क्यों पहले प्रभुपाद जी के शिष्यों में वो नॉलेज जो है ट्रांसलेट हो गई, अब क्यों नहीं हो रही है? पढ़ो, क्या हुआ? माइक किसके पास है? पढ़ो जिसका इंग्लिश स्पष्ट है, पढ़ो। हाँ पढ़िए। Srila Prabhupada, that is stated in this Bhagavad Gita, Tat Vidhi Pranipadena Pariprashnena Sevya, Bhagavad Gita 4.22. Your relationship is to know from a spiritual master everything, but you should know that with three things. What is that? First of all, you should surrender. You must accept the spiritual master as greater than you. This is what does mean to surrender. अगर कभी भी कोई डिफरेंस है तो who is greater? Spiritual master. विदाउट अ डाउट। नहीं तो इनिशिएशन नहीं लेना चाहिए। क्या करेंगे? अपराध करेंगे, गुरु के प्रति अपराध करेंगे। अगर आप इस बात से आश्वस्त हो तभी आपको इनिशिएशन लेना चाहिए। आगे बढ़िए। Otherwise, what is the use of accepting our one spiritual master? Pranipad. Pranipad means surrendering, and pariprashna and questioning and seva and service.
There must be two sides, service and surrender. And in the middle there must be question. Otherwise there is no question and answer. अब तक परिपात नहीं है और सेवा नहीं है, तब तक कोई क्वेश्चन एंड आंसर भी नहीं है। पूछ लोगे, वो बता भी देंगे, लेकिन अप्लाई नहीं होगा। उतना ही अप्लाई होगा जितना सरेंडर है और सेवा है। आगे Two things must be there, service and surrender. Then answer of question is nice. Yes. Prabhupada, yes. Line following and absurd inquiries. These things. हिंदी वाले समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? नहीं तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दो भाई, इसको ट्रांसलेशन अच्छा आता है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। जिनको अंग्रेजी आती है, हिंदी तो आती ही है। जल्दी आप खुद ही कर दो ना। प्रभुपाद, हाँ, अंधे रूप से इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और इस चीज को मना किया गया है। अंधे रूप से फॉलो करने का मतलब वो ये एक स्वामी है। अंधा भक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अंधा भक्त, अंधा भक्त समझते हैं ना? हाँ, ब्लाइंड फॉलोइंग। हिंदी वाले कहाँ है? कौन किसको नहीं समझ में आ रहा है? अंधा भक्त समझते हो ना? हाँ, वो खाली अंधे ही रहते हैं, भक्त नहीं बनते। आगे बढ़िए। वो ये एक स्वामी है, इसको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे भी इसका शिष्य बन जाना चाहिए। इसको अनुभक्ति कहते हैं। आपको नहीं पता स्वामी क्या है? ये स्वामी है, ये रास्कल है। अरे तुम अंग्रेजी पर अनुवाद करो, ये स्वामी है या ढोंगी है, आप नहीं जानते। लेकिन अभी क्या चल रहा है? भेड़ चाल अभी करते हैं ना। हाँ, कोई एक बड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, पंडाल, और पानी लेते हैं और सबके ऊपर छिड़क देते हैं, सबकी दीक्षा हो गई। कोई नियम नहीं है। क्या करो? थोड़ी दक्षिणा दे दो। ये नियम है। क्योंकि हर कोई चाह रहा है तो एक मिनट रुक यार, चलो ठीक है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है? सबसे पहले आपके गुरु के प्रति शरणागति, उनके प्रति सम्मान की भावना। कितना आप उनके समक्ष हृदय से झुकते हैं और वो एक अनुशासक का जो किरदार है वो निभाते हैं। और फिर आप उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न भी क्या करना है कि मेरे स्वामी, इस संसार में इतना दुख क्यों है और मैं क्यों दुखी हूँ, और इस संसार में ये जन्म और मृत्यु का चक्र कैसे समाप्त किया जा सकता है, और इसका उत्तर कैसे मिलेगा? जब आप उनकी प्रेममयी सेवा करेंगे। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कई जगह आपने ये श्लोक पढ़ा होगा। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? कहाँ से है ये? कहाँ से है ये श्लोक? हाँ, मुंडक उपनिषद और श्वेता उपनिषद में भी है। जब मुंडक उपनिषद में तो है ही है, मुंडक उपनिषद से है। और श्रीमद् भागवत में आता है तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जिसका श्रेय क्या है? उत्तम है। तो यह विधि है। जितना आप उनके प्रति सम्मान की भावना हृदय से रखते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं। सम्मान का मतलब क्या है? उनके आदेश का पालन करना। दंडवत मारना खाली सम्मान नहीं है। समान, इसका मतलब क्या है? जो उनका संदेश है, जो उनका निर्देश है, जो उनका आदेश है, उसका पूर्ण पालन करना, यही सम्मान है। जितना करेंगे उतना ही दिव्य ज्ञान आएगा। रोज गाते हैं ना, हाँ, क्या? और ना करी है मन आशा, श्री गुरु चरणे रति, एई से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। ठीक है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। और अगर आपको ऐसे प्रमाणिक गुरु से एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया है, हाँ, अगर आपको ऐसा ज्ञान मिल गया है, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह
एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि। पढ़ो भाई, मेरे पास केवल 5 ही मिनट बचे हैं, पढ़ो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। हाँ, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं। हाँ। वे सब मेरे हैं। तो क्या देख सकते हैं? वो स्वयं को जान सकते हैं कि वो स्वयं कौन है। कृष्ण के क्या है? वो दास है। भगवान कौन है? और जितने और जीव हैं उनका भगवान के साथ संबंध क्या है। और यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर उसके बाद प्रकृति के तीनों गुण आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। मोह कहाँ से उत्पन्न होगा? मोह कहाँ से उत्पन्न होगा? प्रकृति के 3 गुणों से। यानी आप क्या हो गए? आप मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। तो भगवान बता रहे इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला किसी भी स्तर पे हो, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यो, मतलब जितने भी पापी हैं उन सभी पापियों में आप क्या हो? सबसे अधिक भी हो। कोई कह सकता है कि जितने भी पापी हैं उन सभी पापियों में मैं सर्वाधिक बड़ा पापी हूं? ये खाली शायद जगाई बधाई बोल सकते थे। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, मतलब ये अवस्था तो किसी की संभव नहीं है। When you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. तीनों भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं होगा और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप भी नहीं होगा। इस प्रकृति का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। क्यों? यथा धामसि समृद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हाँ, आप जानते हैं ना, जो वृक्ष है, वृक्ष में फल होता है और फल में क्या होता है? बीज। और उस बीज में इतनी शक्ति होती है कि कई पेड़ वैसे लगा दे। लेकिन एक बार उस बीज को अग्नि में भून दीजिए और उसके बाद उसको रोपित करिए, क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये ज्ञान की जो अग्नि है, लेकिन ज्ञान मिलेगा कहाँ से? ज्ञान की अग्नि आएगी कहाँ से? गुरु की कृपा से। तो वो क्या भस्म कर देगी? आपके जितने आने वाले जन्म हैं वो सब भस्म हो गए। कितना सुंदर है। हाँ, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तीनों चीज लिखते हैं कि क्या क्या है। कूट, हाँ, अप्रारब्ध, प्रारब्ध और बीजम, सब नाश हो जाएगा। प्रारब्ध का कभी नाश नहीं होता, हाँ, लेकिन वो भी नाश कर देगी। क्यों? ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस जगत में इतना पवित्र इस ज्ञान के अनुसार कुछ है ही नहीं। इस जगत में सबसे पवित्र कोई चीज है तो वो क्या है? ये दिव्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान?
क्या ज्ञान है ये? आत्मा का भगवान के साथ संबंध ज्ञान। और इससे क्या होगा? तत्स्वयं योग संसिद्धि। उसकी योग की जो सिद्धि है वो परिणित हो जाएगी कि कब? कालेन आत्मनि विन्दति, कुछ ही समय में, कुछ ही उसके प्रयास से, कुछ ही प्रैक्टिस से। बहुत ज़्यादा लंबा उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त किसे होगा? इसके लिए कंडीशंस है 3। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। पहली चीज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा किसमें? श्रद्धा किसमें? अरे गुरु में। मूर्खों, नॉलेज की कहाँ से? नॉलेज तो आएगी नहीं। गुरु में श्रद्धा। जितनी श्रद्धा गुरु में है उतना ही ज्ञान लगेगा। खाली श्रद्धा से भी नहीं चलेगा। और क्या चाहिए? तत्पर, गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला। तत्पर, और क्या है साथ में? संयत इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को क्या करता है? हमेशा संयम में रखता है। तो ये 3 क्वालिफिकेशंस हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, उस शाश्वत आनंद की वो अनुभूति करेगा। और कब क्या करेगा? अचिरेना। चिरेन का मतलब होता है चिरकाल से, तो लंबा। अचिरेना का मतलब है जल्दी। भगवान ने ये शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल किया उन्होंने? 12वें अध्याय में। क्या श्लोक है वो? तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात चिरामी ना भवा पार्था भवामी ना चिरा पार्था, है ना? अचिरे ना था ना। भवामी ना चिरा पार्था, भवामी ना चिरा पार्था। बहुत अच्छा, देखिए ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो आनंद आता है और बोलने का मन करता है। बाकी तो सब देख के मुझे लगता है क्यों बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, काहे को बोल रहे हैं। बहुत अच्छा, मैंने तो कहा इससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है बोलने के लिए। ऐसा ही होना चाहिए। अरे ताली तो जब मारो जब स्वीकार करो ना भैया, पढ़ो। एक को मैंने पकड़ा 12 बजे, मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, बैठ के जप कर रहा है। कौन था वो? तुम्हारी क्लास में होगा भी नहीं, आप नहीं थे, कोई और था। 12 बजे, मैंने पूछा सुबह 2:30 बजे से उठे हुए हैं, दिन के 12 बजे तक क्या 16 माला नहीं हुई? पढ़ के एक लाइन आए नहीं। क्या किया फिर? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक वो भी है, इस क्लास में चले गए। मैंने मना किया कोई क्लास में अलग नहीं जाना है। अरे नहीं है कैपेसिटी, नहीं है कैपेसिटी। एक चीज को पकड़ने की कैपेसिटी नहीं है, 4 एक साथ कहां से पकड़ेंगे? संभव ही नहीं है। बहुशाखा ही बने रहेंगे। भगवत गीता ज्ञान उसी को मिलेगा जो क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। यहां बोले संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। एक से एक इसके अंदर प्रभुपाद जी ने दिव्य, लेकिन किसको नहीं मिलेगा यह भी बताया है। किसको मिलेगा यह बता दिया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। लेकिन जो अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। 3 प्रकार के लोगों को नहीं मिलेगा। पहला व्यक्ति क्या है? अज्ञानश्च। अज्ञान का मतलब क्या है? निपट मूर्ख। निपट मूर्ख वो कौन है? जिसको कितनी बार बताया जाए वो सुधरता नहीं, मानता नहीं, वही करता है जो उसके मन में होता है। और दूसरा अश्रद्धानश्च, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। पिछली बार क्या बताया था? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं मिलेगा। और तीसरा बड़ा ही
हाँ जटिल है, वो क्या है? संशय आत्मा। वो क्या करता है? वो हर जगह अपना एक फैक्टर लगा देता है। ऐसा क्यों? हाँ आगे क्या होगा? मतलब उसके अंदर क्या है? उसके हार्ट में जो इनसिक्योरिटी है, डाउट है। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों को नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना, तो ना दे फॉल डाउन लिखा है, उनका अवश्य क्या होगा? पतन होगा, गिर जाएंगे। विशेष रूप से किसके लिए बोल रहे हैं? जो संशय आत्मा है। संशय से रहित होना चाहिए। संशय है तो अपने से श्रेष्ठ जो भक्त हैं उनसे जिज्ञासा कर लीजिए, लेकिन समस्या क्या है? जब उसका निवारण देंगे तो स्वीकार करेंगे नहीं। तो वो क्या है? ऐसी कैटेगरी क्या है? संशय आत्मा। तो सावधान, क्योंकि समस्या क्या है? वो उत्तर वही चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, वो मिलेगा नहीं। तो फिर आपका निवारण कहां से होगा? योग संन्यास्त कर्माणा ज्ञान संशिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। पढ़ दो उसका अनुवाद। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिनके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तात्पर्य पढ़ दो, छोटा सा है। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। मूलतः कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही होता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। हरे कृष्णा। इसलिए भगवान ने भगवत गीता दी। तो लास्ट में क्या है? तस्मात् अज्ञान संभूता हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मना छित्त्वेनं संशयं योग आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात्, तस्मात् का मतलब क्या है? कंक्लूजन। तस्मात् को हिंदी में क्या लिखा है? अतएव। अतएव, आगे कुछ नहीं, समाप्त। क्या करना है? अज्ञान संभूतम। अब उसको क्या करना है? तस्मात् अज्ञान संभूतम। हाँ, हृत्स्थम। और यह ज्ञान कहाँ पे होता है? हृदय में। उसे क्या करना है? छित्त्वेनम, उसका नाश करना है। किससे? उसका हथियार क्या है? ज्ञान। तो प्रभुपाद जी ने क्या टाइटल दिया? ज्ञान की तलवार। सब कहाँ से आया? इधर से आया है। कितना साइंटिफिक है। ऐसे इसे पकड़ना चाहिए कि कहाँ से भगवान क्या दे रहे हैं। बाय द वेपन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की तलवार क्या है? हिंदी में लिखा है ज्ञान की तलवार। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, ज्ञान की तलवार नहीं लिखा ना, सटीक है, सटीक है ज्ञान की तलवार। आर्म्ड विद योगा ओ भारता स्टैंड एंड फाइट। ठीक है, परपोर्ट्स आपको खुद पढ़ने होंगे। कल से हम क्या करेंगे? दिव्य ज्ञान हो गया तो अब क्या करेंगे? यज्ञ आचरित कर्म। अब हम कोई कर्म नहीं करेंगे, अब हमारे सारे कर्म क्या होने चाहिए? यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील